Hello dear students, we have done the first part of the present lesson, the stamp album. Today we shall discuss its second part. I hope you have well understood the first part, and if you still need the first part of this second part, you can find the link of the first part in the description box of the second video. Similarly, if you have watched, you have seen the first part of the video, you can find the link of the first video in the second part. Yes, dear students, in the continuation of this chapter, let us start the second part, and the second part of the lesson starts from here. Now, before going ahead, we shall know what happens in the first part. In the first parts, we know that Rajappa feels very jealous of Nagarjuna's, as no one in the class or in the school with a girl or boy paying any attention to his stamp album. And as a result of his, he felt envious as other boys and girls of the school hovered around Nagarjuna's stamp album. Nagarjuna has received his stamp album as a gift from his uncle who lives in Singapore, while Rajappa had worked very hard in order to make his album. So, out of jealousy, he stole away Nagarjuna's stamp album. And now, what happens? Does Nagarjuna come to know about this theft, or what happens? We shall read and see in this chapter. So, let us discover. In the second part, what was Nagarjuna's father's profession? We shall come to know about Nagarjuna's father's profession. Where does he work? We shall come to know about it. And next thing, where did Rajappa throw Nagarjuna's stamp album? We shall know. What does he do with his album? Where does he throw Nagarjuna's stamp album in his jealousy? So, let us begin. On reaching home, he hid the album behind the bookshelf. His body felt as though it was on fire. His throat was dry and blood pounded in his head. घर पर पहुंचने के बाद उसने एल्बम को बुक शेल्फ के पीछे छिपा दिया. ऑन रीचिंग होम, राजप्पा ने घर पे पहुंचने के बाद उस एल्बम को बुक शेल्फ के पीछे छिपा दिया, बिहाइंड द सेल्फ. और उसने महसूस किया कि जैसे उसके पूरे तन बदन में आग लगी हुई हो. He felt as though it was on fire. His entire body was on fire. उसको ऐसा महसूस हुआ. And his throat, उसका गला was dry, सूखा था. Blood pounded in his head, और उसके सिर में उसका खून धक्के लगा रहा था, ऐसे जैसे भबक रहा हो. उसको चोरी करने के उपरांत उसके साथ ऐसा बुरा हाल हुआ. फाइनली एट 8 इन द इवनिंग, और अंत में जब शाम के 8 बजे थे, तो अप्पू हु लिव्ड अपोजिट केम एंड टोल्ड राजप्पा दैट नागार्जुना's स्टैम्प एल्बम वाज मिसिंग. तो उसके पड़ोस में रहने वाला, उनकी क्लास में पढ़ता था अप्पू हु लिव्ड अपोजिट, जो उसके घर के बिल्कुल अपोजिट साइड में रहता था, उनके घर के पास ही रहता था, वो आया और उसने रजप्पा को बताया कि नागार्जुना's की जो स्टैम्प एल्बम है वो मिसिंग है, वो कहीं गुम हो गई है, मिसिंग है वो. नागार्जुना एंड ही हैड गॉन डाउन टू टाउन इन द इवनिंग. शाम को वह और नागार्जुना दोनों ही शहर में गए थे, छोटे शहर में, कस्बे में घूमने के लिए गए थे. व्हेन दे रिटर्न द एल्बम वाज गॉन, और जब वो वापस लौट कर आए तो देखा कि एल्बम वहाँ से चोरी हो गई थी. इट वॉज गॉन, ये चली गई थी.
राजप्पा डिडंट अटर ए वर्ड, राजप्पा से एक शब्द भी नहीं निकला, अटर निकला, मुंह से शब्द नहीं निकला। ही प्रेड दैट अपू वुड गो अवे, उसने मनी मन प्रार्थना की कि काश अपू वहां से चला जाए, वुड गो अवे। व्हेन अपू डिड गो अवे, और जब अपू चला गया, व्हेन अपू डिड गो अवे, ही हरिड टू हिज रूम, वो जल्दी से अपने कमरे में गया, हरिड जल्दी से, टू हिज रूम वो अपने कमरे गया, एंड बोल्टेड द डोर, और दरवाजे पे उसने कुंडी लगा ली। ही टुक आउट द एल्बम फ्रॉम बिहाइंड द सेल्फ, एंड देन उसने क्या किया, ही टुक आउट द एल्बम विच ही हैड हिडन बिहाइंड द सेल्फ, जो उसने सेल्फ के पीछे छिपाई थी, वो एल्बम वहां से निकाल ली। हिज हैंड फ्रोज, और उसके हाथ बिल्कुल जम गए। He felt helpless. He could do nothing with the help of his hands. He felt frozen. What if somebody was watching from the window? Or then a thinking came to his mind. What would happen if someone is peeping through the window? And उसको ऐसा महसूस हुआ कि कोई खिड़की से अगर झांकेगा, वो देख लिया किसी ने, तो क्या होगा? वट क्या होगा? इफ somebody was watching from the window, अगर कोई खिड़की से देख रहा हो तो क्या होगा? He shoved the album back behind the shelf, and as this thinking came to his mind, as जैसे उसने ये सोचा, he shoved the album behind the shelf again, और उसने दोबारा से एल्बम को सेल्फ के पीछे छिपा दिया। Rajappa hardly touched his dinner, और at that evening he couldn't eat anything. वो यहाँ तक कि अपने डिनर को टच भी नहीं कर पाया। हार्डली मुश्किल से he could touch his dinner, वो अपने डिनर को छू पाया। He ate nothing at that evening. The family was concerned and asked if he was feeling unwell, and the entire family, his whole family members grew troubled. They grew anxious, puzzled, वो चिंता में हो गई, और उन्होंने पूछा इफ ही वॉज फीलिंग वेल और नॉट, कि वो ठीक महसूस भी कर रहा है या नहीं, वो क्या हो गया उसे। मे बी स्लिप वुड ब्रिंग पीस, हो सकता है शायद कि उसको थोड़ा नींद ले ले वो, और उसको थोड़ा आराम मिल जाए। मे बी स्लिप वुड ब्रिंग पीस। सो राजप्पा ले डाउन ऑन हिज बेड, राजप्पा देन वेंट टू बेड, सोने के लिए वो चला गया। बट स्लीप एलूडेड हिम, लेकिन उसे नींद भी नहीं आई, नींद भी उससे कोसों दूर थी। ही स्लीप एस्केप्ड हिम, ही कुडंट ब्लिंक, वो पलक नहीं झपक सका। व्हाट इफ समबडी स्टम्बल्ड अपॉन द हिडन एल्बम व्हाइल ही वाज asleep, क्या होगा अगर किसी ने वो डिस्कवर कर ली, फाइंड आउट द एल्बम बाय एक्सीडेंट, और सडनली इफ समवन comes to know about the stamp album while he's sleeping, ऐसी sudden thoughts comes to his mind, उसके माइंड में ऐसी ऐसी थॉट आने लगी कि अगर उसके सोते हुए किसी को वो एल्बम पे हाथ लग गया तो क्या होगा। ही गोट अप, वो खड़ा हुआ, टुक आउट द एल्बम, उसने एल्बम को वहां से निकाला, एंड पुट इट अंडर हिज पिलो, एंड ही पुट द एल्बम अंडर हिज पिलो, जो पिलो वो लगाया था सोते हुए उसके नीचे उसने छुपा दिया। Rajappa hadn't woken up when Appu appeared in the morning. Rajappa भी जागा भी नहीं था. He could hardly woke up. Then he found Appu was present in his home in the early morning, in the next early morning. उसने देखा कि अप्पू पहले से उनके घर में आया हुआ खड़ा है, पहले से आ गया वो। Appu had just been Nagarjuna's again. Appu had just been to Nagarjuna. वो दोबारा से अप्पू क्या है, नागार्जुना के पास से होकर आया है। He had just been to Nagarjuna's again. वो पहले नागार्जुना के यहाँ से आया है। I am told you were at his house yesterday. मुझे बताया गया है कि तुम उसके घर पे कल थे। I am told you were at his house yesterday. तुम उसके घर गए थे कल, उसने उसको बताया। राजप्पा फेल्ट हिज हार्ट सिंक, राजप्पा को महसूस हुआ कि उसका दिल डूबा जा रहा है। ही गेव ए नॉन कमिटल नॉट, और उसने ना के लहजे में अपनी गर्दन हिला दी। ही नोडिड, उसने अपनी गर्दन हिला दी, एज इफ इन द वे ऑफ डिनाई करते हुए।
Kamakshi says you were the only one to call at the house, while Nagarjuna Rajappa felt his heart sank. He gave a non-committed nod. Kamakshi कहती है, You were the only one to call at the house. कि तुम ही अकेले थे जो घर पे मिलने के लिए गए थे, बुलाने के लिए गए थे. To call at, मिलने जाना. While Nagarjuna and I had gone down to town. जब मैं और नागार्जुना both of us had gone to town. हम दोनों जब टाउन में गए थे तो तुम ही हमसे मिलने के लिए गए थे. राजप्पा डिटेक्टेड द सस्पिशन इन अपूज टोन. राजप्पा ने अप्पू की आवाज में, अप्पू की टोन में एक संदेह सा डिटेक्ट किया, एक संदेह से का आभास हुआ. नागार्जुना हैज बीन क्राइंग ऑल नाइट. नागार्जुना पूरी रात रोता रहा. ही हैड बीन क्राइंग ऑल द नाइट. हिज फादर माइट सेंड फॉर द पुलिस. और हो सकता है उसके पापा पुलिस को भी बुला लें, पुलिस के लिए बुलावा भेज दें, कंप्लेन कर दें. ऐसा भी हो सकता है. हिज फादर कैन लॉज ए कंप्लेन about the theft in the police station because he works in the police station. उसके पापा पुलिस स्टेशन में काम करते हैं. Now is it clear to children? That question asked in the very beginning of this second part. Where does Nagarjuna's father work? He works in the police department. Nagarjuna has been crying all night. His father might send for the police. Rajappa didn't say a word. राजप्पा ने एक भी शब्द नहीं कहा. Nagarjuna's father worked in the police superintendent office. He worked in the police superintendent office. He had only to lift his little finger and the whole police force would be out to trace the album. He had only to lift his little finger. उसे अपनी एक छोटी सी उंगली उठानी पड़ेगी और जो पूरी की पूरी पुलिस फोर्स है would be out to trace the album. वो उस एल्बम को पकड़ने के लिए आ जाएगी. would be out to trace the album. Fortunately for Rajappa, रजप्पा के लिए Appu's brother arrived to fetch his brother. अप्पू का ब्रदर उसके भाई को लेने के लिए आ गया. भाग्य क्या हुआ? फॉर्चुनेटली फॉर रजप्पा, रजप्पा का भाग्य था ये कि अप्पू का ब्रदर अराइव्ड टू फेच हिज ब्रदर, अपने भाई को वहां से उनके घर से लेने के लिए आ गया. फॉर ए लॉन्ग टाइम आफ्टर ही हैड लेफ्ट. काफी लंबे समय तक जब वो चला गया था, राजप्पा सेट स्टिल ऑन हिज बेड. राजप्पा अपने बेड पर चुपचाप बैठ गया. हिज फादर फिनिश्ड ब्रेकफास्ट. उसके पापा ने अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया, नाश्ता खत्म कर लिया. एंड लेफ्ट फॉर ऑफिस ऑन हिज बाइसिकल. वो अपनी साइकिल पर बैठकर ऑफिस चला गया. देयर वाज ए नॉक एट द फ्रंट डोर. दरवाजे पर, सामने वाले दरवाजे पर, एट द फ्रंट डोर एक खटखटाहट हुई. Was it the police? क्या ये पुलिस है? राजप्पा grabbed the album. राजप्पा ने एल्बम को पकड़ा. From under the pillow. पिलो के नीचे से उसने एल्बम को उठाया. And ran upstairs. और सीधा सीढ़ियों पर दौड़ गया. And shoved it behind a bookshelf. और वहां पे बुक शेल्फ में इसको छिपा दिया, किताबों की अलमारी में. What if the police made a search? क्या होगा अगर पुलिस वहां पे खोजने लग गई तो? He took it out of the bookshelf. वहां से फिर उसने बुक शेल्फ के पीछे से भी निकाल लिया. Tucked it under his shirt. और अपनी शर्ट में छिपा दिया, अंदर डाल दिया. Came downstairs. और फिर वो सीढ़ियों से नीचे उतर आया. Someone was still knocking on the door. अभी भी कोई दरवाजे पर खटखटा रहा था. Rajappa's mother shouted from the kitchen. राजप्पा की माँ किचन के अंदर से ही चिल्लाई. Why don't you open the door? तुम दरवाजे को क्यों नहीं खोलते? She was sure to go and unbolt it herself in a few seconds. और ऐसे लगता था अगर वो नहीं गया तो कुछ ही सेकंड में खुद जाएगी और उस दरवाजे को खोल देगी, अनबोल्ट कर देगी, इसकी कुंडी खोल देगी. राजप्पा ran to the back of the house. राजप्पा घर के पीछे दौड़ गया.
He went into a bathroom. He went into the bathroom. वो बाथरूम में गया and closed the door. और उसने दरवाजे को बंद कर लिया. There was a large oven in the bathroom. बाथरूम में एक बड़ा सा ओवन था. ओवन, तवा. For heating the bath water, जो कि पानी को गर्म करने के लिए था. राजप्पा थ्रू द एल्बम इन द फायर. राजप्पा ने एल्बम को आग में फेंक दिया बाथरूम के अंदर. द एल्बम बर्न एंड विद इट ऑल द प्रीशियस स्टैम्प्स. और वो एल्बम जल गई और इसी के साथ सारी की सारी जितनी भी प्रीशियस कीमती जो स्टैम्प्स थी वो भी जल गई. एंड दैट वर अनअवेलेबल एनीवेयर. ऐसी टिकट जो अब कहीं पे भी उपलब्ध नहीं होती है. वर अनअवेलेबल एनीवेयर, कहीं पे भी जो अनअवेलेबल है. टीयर्स फिल्ड राजप्पा's eyes. और टीयर्स रोल डाउन राजप्पा's eyes. राजप्पा की आंखों से आंसू निकल पड़े. वो मदर वाज शाउटिंग, माँ चिल्ला रही थी. हरी अप, नागार्जुन हैज कम टू सी यू. जल्दी करो बेटा, नागार्जुन तुमसे मिलने के लिए आया है. राजप्पा टुक ऑफ हिज शॉर्ट्स. राजप्पा ने अपनी शॉर्ट्स उतारी. रैपिंग हिमसेल्फ विद ए वेट टॉवल. और अपने आप को एक गीले तौलिए से लपेटा. केम आउट ऑफ द बाथरूम. और बाथरूम के बाहर आ गया. ही पुट ऑन ए फ्रेश शर्ट. उसने एक ताजी सी, एक धुली हुई शर्ट डाली. एंड ट्राउजर्स, और एक पैंट डाली. एंड वेंट अपस्टेयर्स. नागार्जुन वाज सिटिंग इन ए चेयर. और वो सीधा ऊपर चले गया. वेंट अपस्टेयर्स, सीढ़ियों पर ऊपर चला गया. नागार्जुन वाज वेटिंग हिम देयर. ही वाज सिटिंग इन ए चेयर. वो चेयर पर बैठा था, उसका इंतजार ही कर रहा था वहां पे. माई स्टैम्प एल्बम इज लॉस्ट, नागार्जुन सेड इन ए ब्रोकन वॉइस. नागार्जुन ने एक ब्रोकन वॉइस में, टूटी हुई सी आवाज में कहा कि मेरी स्टैम्प एल्बम खो गई है. हिज फेस वाज ग्रिफ स्ट्रिकन. उसका चेहरा दुख से भरा हुआ था. एंड हिज आईज रेड रिम्ड. और उसकी आंखें बिल्कुल लाल कोने वाली हो गई थी. एंड स्वोलन विद आवर्स ऑफ क्राइंग. और घंटों तक रोने के कारण वो सूजी हुई थी. वेयर हैड यू केप्ट इट. तुमने ये किताब कहाँ रखी थी. राजप्पा ने पूछा. आई एम श्योर आई हैड पुट इट इन द टेबल ड्रार. मुझे पक्का विश्वास है कि मैंने इसको टेबल ड्रार में रखा था. टेबल की ड्रार में, मेज की अलमारी में इसको रखा था. आई हैड लॉक्ड द ड्रार टू. मैंने ड्रार को भी लॉक किया था. आई वेंट आउट फॉर ए शॉर्ट वाहिल. मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था. एंड व्हेन आई रिटर्न इट वाज गॉन. और जब मैं लौट गया तो ये वहाँ पर नहीं थी. इट वाज गॉन, नहीं थी, यहाँ से चली गई थी, मिसिंग हो गई थी. टीयर्स स्ट्रीम्ड डाउन हिज फेस. उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे. स्ट्रीम्ड, झरने की तरह, नदियों की तरह आंसू गिर रहे थे. स्ट्रीम, लाइक ए स्ट्रीम. राजप्पा फेल्ट सो गिल्टी ही कुड हार्डली लुक एट हिज फ्रेंड्स फेस. राजप्पा इतना ज़्यादा दोषी महसूस कर रहा था कि ही कुड हार्डली लुक, कि वो मुश्किल से देख सकता था, एट हिज फ्रेंड, अपने दोस्त की ओर वो मुश्किल से देख सकता था. डोंट क्राई ही मबल्ड. वो बुदाया कि मत रो, डोंट क्राई. बट द मोर ही ट्राई टू कंसोल नागार्जुन, द मोर द बॉय क्राइड. लेकिन जितना ज़्यादा उसने नागार्जुन को कंसोल करने की, चुप करने की कोशिश की, नागार्जुन इतना ही ज़्यादा रो रहा था. राजप्पा रेन डाउन स्टार्स. राजप्पा नीचे सीढ़ियों से दौड़ कर आया. एंड वाज बैक इन ए मोमेंट. और एक ही पल वापिस आया. ही रेन डाउन स्टेयर्स. वो नीचे दौड़ कर गया. एंड वाज बैक इन ए मोमेंट. और एक ही पल में ऊपर आ गया. ही हैड हिज स्टैम्प एल्बम इन हिज आर्म्स. उसके बाजुओं में स्टैम्प एल्बम थी. नागार्जुन, हियर इज माई एल्बम. यहाँ पे रही, ये मेरी एल्बम है. इट्स योर्स. अब ये तुम्हारी है. डोंट लुक एट मी इन दैट वे, आई एम मीन इट रियली. इस तरीके से मेरी तरफ मत देखो. डोंट लुक एट मी इन दैट वे, आई मेंट इट रियली. ये बिल्कुल तुम्हारी है, मेरा मतलब ये तुम्हारी ही है. आई एल्बम, द एल्बम इज फॉर यू. ये एल्बम तुम्हारे लिए है. यू आर जोकिंग. तुम मजाक कर रहे हो. नागार्जुन ने कहा कि तुम मजाक कर रहे हो राजप्पा से.
नो आई एम गिविंग इट टू यू, नहीं मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ, आई एम गिविंग इट टू यू। ऑनेस्टली, ईमानदारी की बात है, ईमानदारी से मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इट्स ऑल योर्स फ्रॉम टुडे, ये आज से तुम्हारी है, कीप इट, इसे अपने पास रख लो। नागार्जुना कुड नॉट बिलीव हिज आइज, नागार्जुना अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता था। राजप्पा गिविंग हिज एल्बम अवे, राजप्पा अपनी एल्बम उसको दे रहा था। बट राजप्पा केप्ट अर्जिंग हिम टू टेक इट, और राजप्पा उसको बार बार इसको लेने के लिए अर्ज कर रहा था, उसे प्रार्थना कर रहा था। ही वॉज अर्जिंग, और राजप्पा अपनी उसको एल्बम दे रहा था, नागार्जुना उसको ले नहीं रहा था, क्योंकि उसने अपनी एल्बम खो दी थी। वो उस दर्द को जानता था कि राजप्पा को दर्द होगा, लेकिन राजप्पा कह रहा था कि नहीं, मैं ऑनेस्टली, इट्स ऑल योर्स फ्रॉम टुडे, कीप इट, इसे आज तुम रख लो, ये तुम्हारी ही है। वट अबाउट यू, नागार्जुना आस्क्ड, नागार्जुना ने पूछा कि तुम्हारा क्या होगा। आई डोंट वांट इट एनी मोर, मैं इसे अब और ज़्यादा नहीं रखना चाहता। नॉट इवन ए स्टैम्प, इसकी एक स्टैम्प भी नहीं रखना चाहता। नॉट इवन वन, एक भी नहीं इसमें से मैं रखना चाहता। बट हाउ विल यू लिव विदाउट योर स्टैम्प्स, लेकिन तुम अपनी स्टैम्प्स के बगैर कैसे रहोगे, तुम अपने स्टैम्प्स के बगैर कैसे रहोगे। राजप्पा's eyes brimmed with tears, राजप्पा की आंखें आंसुओं से भर गई। ब्रिम्ड, पूरे किनारे तक भर गई, वो पलकों तक भर गई। डोंट क्राई राजप्पा, राजप्पा मत रो। यू डोंट हैव टू गिव अवे योर एल्बम, तुम्हें अपनी एल्बम नहीं देनी पड़ेगी, मैं तुम्हारी एल्बम तुमसे नहीं लूंगा। कीप इट, तुम इसे रख लो। यू डोंट हैव टू गिव अवे योर एल्बम, कीप इट, उसे रख लो, ये तुम्हारी एल्बम है। यू वर्कड सो हार्ड, तुमने इस पर कितनी मेहनत की है, तुम इसे वापस रख लो, मैं इसे नहीं लूंगा। नो यू कीप इट, नहीं तुम इसे रख लो भाई। इट्स फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है। टेक इट होम, इसे घर ले जाओ। प्लीज टेक इट एंड गो अवे, प्लीज इसे ले लो और चले जाओ। स्क्रीम्ड राजप्पा, राजप्पा चिल्लाया, स्क्रीम्ड, चिल्लाया। नागार्जुना वाज बेफर्ड, नागार्जुना बिल्कुल बेफर्ड था, उसके दिमाग में नहीं आ रहा था वो क्या करे। ही टुक द एल्बम एंड केम डाउन, उसने एल्बम को लिया और नीचे उतर आया। राजप्पा फॉलोड हिम, राजप्पा उसके पीछे पीछे आया। वाइपिंग हिज टीयर्स, अपने आंसू पोंछते, विद हिज शर्ट एंड, अपने शर्ट के कोने से, एंड से शर्ट एंड, शर्ट के कोने से आंसू पूछता उसके पीछे पीछे आया। दे स्टूड एट द डोर, वो दरवाजे पर खड़े हो गए। थैंक यू, धन्यवाद मित्र, नागार्जुना, नागार्जुना ने कहा कि धन्यवाद, तुमने मुझे अपनी एल्बम दे दी। नागार्जुना हैड स्टेप्ड इनटू द स्ट्रीट व्हेन राजप्पा कॉल्ड आउट टू हिम, नागार्जुना ने गली में कदम रख दिया था जब राजप्पा ने उसको वापस बुलाया। हैड स्टेप्ड इनटू द स्ट्रीट, गली में कदम रख दिया था जब राजप्पा ने उसको एक बार फिर वापस बुलाया। नागार्जुना टर्न, नागार्जुना मुड़ कर आया। प्लीज प्लीज गिव मी द एल्बम जस्ट फॉर टुनाइट, प्लीज प्लीज गिव मी द स्टैम्प एल्बम, मुझे अपनी एल्बम, मुझे ये एल्बम एक रात के लिए दे दो, केवल एक रात के लिए राजप्पा अपनी एल्बम उससे मांग रहा था। आई विल हैंड इट बैक टू यू टुमारो मॉर्निंग, मैं इस स्टैम्प एल्बम को तुम्हें सुबह, कल सुबह दे दूंगा। नागार्जुना एग्रीड, नागार्जुना सहमत हो गया, एंड वेंट अवे, और वो चला गया। एक रात और वो अपनी एल्बम के साथ रहना चाहता था। कितनी मेहनत की थी उसने अपनी एल्बम बनाने में, आज उसे अपनी वो एल्बम देनी पड़ रही थी केवल अपनी एक मूर्खता की वजह से, केवल एक जेलसी की वजह से उसे इतना बड़ा, केवल एक उस जेलसी की वजह से इतना बड़ा दाम चुकाना पड़ रहा था। नागार्जुना एग्रीड एंड वेंट अवे, नागार्जुना सहमत हो गया और वो चला गया उसको एल्बम देकर। राजप्पा क्लाइम्ड द स्टेयर्स, राजप्पा सीढ़ियों पर चढ़ा। एंड बोल्टेड द डोर फ्रॉम ऑफ हिज रूम, और अपने कमरे के दरवाजे पर कुंडी लगा ली। बोल्टेड द डोर ऑफ हिज रूम, होल्डिंग द एल्बम टाइटली, और उस एल्बम को
बिल्कुल टाइटली पकड़ के, अपनी छाती के साथ लगा के, ही शॉप्ड हिज हार्ट आउट, वो रो रो के अपना दिल उसने बाहर रख दिया। ही शॉप्ड हिज हार्ट आउट, वो जोर जोर से रोने लगा। डियर चिल्ड्रन, how do you like the story? Very touching story. So the same things happens with you many times in your age or in your age circle. How you feel jealous, or you sometimes become envious of your friends, or your friends also becomes envious for you. So what moral you learn from this lesson? The only moral you learn from this lesson, that we should always keep doing hard work, and at the same time we should appreciate the work done by others. Whatever they are, we just pay attention to our work. We should always stay focused whatever we are doing, and we should never care about if the other will criticize us or others will praise us or not. We should never strive for praise. We should strive only for hard work. Rajappa had done a really good hard work. He had worked as a honeybee to collect the stamp album. He had done very good job. But he became victim of jealousy. And out of jealousy, he takes a wrong step. He commits a guilt, and he faces the consequences by giving away or parting away with his own stamp album. So, dear students, this lesson is translated from Sundara Ramaswamy's, and this composition was first written in Tamil by Asoka Mitran. So, this is a great work written for the age group of you. So this is the end of the second lesson, second part of this current present lesson. I hope you will like it. If you like this lesson, please do subscribe my channel and share the video with others, so that, and also suggest me in the comment box what sorts of videos you want from me, or you can also suggest me lessons upon which I should make new videos. So till then, bye bye. Have good luck, beta. May God Saraswati bless you. Thank you.